Hello TYBSC. So today we are going to see and start our immunology first, which is MB334, and in which we are going to see immunity and its types. So we are going to study what is immunity, how it is defined, what are types of immunity, on what basis they are classified. So we are going to study all these things in this particular PPT. So to start with immunity, so immunity is nothing but it is capacity, or we can say capability of our body to fight against certain diseases or any foreign substances and prevent our body from falling ill. So particularly we get encounter with millions of microorganism in a day. हम कितना जाने कितने microorganisms को encounter करते हैं एक डे में, and even though we don't fall ill every next day, like हर दूसरे दिन हम बीमार नहीं पड़ते. Why? Because our body has something in it, some mechanism, some system in it which is helping directly or indirectly to protect our body from getting affected by that particular external agent, be it microorganism, be it anything which is injuring us, which is harmful to us. So this is nothing but immunity. So immunity is defined as a body defense against exogenous or endogenous agent. So exogenous, we know microbes, they may be pathogen or not, but they invade our body and they can cause us harm. That is why immunity acts against them. Endogenous tumors, because we know tumors are very harmful, like cancer cells हम उनको बोल सकते हैं, they are very harmful to our body, so our immune system works against them also. So this is all about immunity. So immunity is not only again invading them, but also protecting our body from falling ill again. If फर्स्ट एनकाउंटर हुआ, सेकंड एनकाउंटर हुआ अगर बैक्टीरिया का, देन ऑल्सो वी कैन गेट प्रोटेक्टेड. सो इट इज़ ऑल्सो हैविंग द कैपेसिटी कि वो हमारे बॉडी के खुद के सेल्स लाइक ब्लड सेल है या फिर स्किन सेल्स है उनमें एंड फॉरेन बैक्टीरियल सेल या फिर डस्ट पार्टिकल्स इन सब में डिस्टिंग्विश करे, ऐसी ट्रेनिंग उसको दी जाती है. दैट इज़ व्हाट आवर इम्यूनिटी डज. So now in the immunity we can, like, it is a kind of resistance or it is kind of the shield. जो battles में we see that soldiers have the shield to protect themselves from attack of the enemy. So this bacteria, they are like enemy, or any foreign substance, they are like enemy, and our this immune system, it is like a shield which will protect us from that infection or from the attack of those agents. So now इट हैज़ द रिकॉग्नाइजेशन प्रॉपर्टी कि वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश करे, अदरवाइज़ वो हमारे भी बॉडी के सेल को हार्म कर सकते थे. बट नो, दे हैव दैट कैपेबिलिटी कि वो डिस्टिंग्विश करे कि कौन से सेल अपने हैं एंड कौन से फॉरेन से हमारे बॉडी में इन्वेड हुए हैं. So that thing is carried out by our immune system. So then immune response is a reaction of the body against any foreign antigen. It is basic, like in short we can say that they give some kind of reaction to the to that entry of the foreign body, and then after that foreign antigen or any body which is entered will be killed. So this is immune response, and it is done by our immune system. And this थिंग ओवरऑल जो इम्यून सिस्टम जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी उसको ही हम इम्यूनिटी कहते हैं. Then but protection against the infection disease is only part of it. Like it has major role to protect, it doesn't have the major role to protect. वो प्रोटेक्ट करने की इसकी कोई ये नहीं होती, उसका कोई एम नहीं होता. उनका एम है कि किसी को अंदर नहीं आने देना. एंड देन डिसीज़ से प्रोटेक्ट करना ये उस बात की बात है, मतलब कभी कभी उसको इन्वेड करके भी बैक्टीरिया एंटर करते हैं एंड स्टिल दे फॉल इल. सो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आवर इम्यून सिस्टम वर्क्स. So then our immunity is divided into two types. So they are categorized into two types. On what basis? कि वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं या कैसे वो अटैक करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसके बेसिस पे. So in innate immunity, which is also called as natural immunity or inborn immunity, in the adaptive immunity we have it is also called as acquired immunity. अब उसके भी कुछ
वो भी आगे जाके अगेन डिवाइड हुए हैं, लाइक एडेप्टिव इम्यूनिटी इज अगेन डिवाइडेड इनटू नेचुरल, आर्टिफिशियल, विच इज़ अगेन सब कैटेगराइज्ड इनटू passive, active, and these subtypes. So we will study them in detail. You can just overlook this chart for now. So to start with innate immunity, which is also called as natural immunity. उसको इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं ना, उसका नाम ही है नेचुरल इम्यूनिटी। इसका मतलब है वो नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती, तो इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है। सो व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक? बिकॉज सपोज मैं आपको एग्जांपल दूँ कि 3 डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर हो रहे हैं। सो हमारी जो इनेट इम्यूनिटी है वो तीनों के अगेंस्ट सेम रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स। वो पर्टिकुलरली एक एक को डिफरेंट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देगी। वेल इन द केस ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो पर्टिकुलर एंटीजन है उसको सेपरेट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा। सपोज वी हैव 1, 2 and 3 बैक्टीरिया, तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो तीनों के लिए जो है एक ही इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। वेल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो ए बैक्टीरिया के लिए दूसरा, बी बैक्टीरिया के लिए दूसरा एंड सी बैक्टीरिया के लिए दूसरा। एंड अगेन द डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो है इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी में इम्यून रिस्पॉन्स की कोई मेमोरी नहीं होती। मतलब वो बैक्टीरिया जो है वो फर्स्ट टाइम आया, उस टाइम में भी वही टाइम लगेगा उसको इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में। सेकंड टाइम आया तब भी वही टाइम लगेगा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में, क्योंकि उसके पास कोई मेमोरी नहीं है कि वो स्टोर करे एंड देन नेक्स्ट टाइम इफ़ द बैक्टीरिया इज अगेन एनकाउंटर, सो हाउ इट विल लाइक अटैक इट। It doesn't have that specification, so it is called as non-specific immune system. So after that यहाँ पे जो है innate immune system में सबसे आपको अगर easy example दूँ तो स्किन सेल्स है, उसमें हमको पता है सीलिया प्रेजेंट रहते हैं या फिर हेयर रहते हैं। इवन म्यूकस इन आवर नेज़ल मेम्ब्रेन पे जो म्यूकस है, दिस आर ऑल द केमिकल्स और फिज़िकल बैरियर जो हमारे बॉडी को प्राइमरीली हेल्प करेगी। लाइक अगर बैक्टीरिया या फिर फॉरेन सब्सटेंस अगर एंटर हो रहा है, वो सबसे पहले इन सब चीज़ों पे जो है इनकाउंटर होगा, वहीं पे वो ख़त्म होगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेजेंट नेचुरली इन आवर बॉडी। स्किन जो है वो नेचुरल है, वो जो है वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए कुछ अपना कलर चेंज नहीं करेगी या फिर अलग टाइप का एंजाइम जो है रिलीज़ नहीं करेगी, नहीं। सो इट विल जनरेट सेम अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स और सेम रिस्पॉन्स फॉर ऑल द बैक्टीरिया और ऑल द सब्सटेंसेस विच विल एंटर। डस्ट भी पार्टिकल हो तब भी वो वही इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। सो दिस इज़ अबाउट द इनेट इम्यून सिस्टम। सो अगेन जो इनेट इम्यून सिस्टम है अगर हम शॉर्ट में बोले तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ लाइक 3 बेसिक टाइप्स। सो इसमें फर्स्ट वन इज़ लाइक इट इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिस। सो डिफरेंट जो स्पेसीज रहते हैं, लाइक इंटायर ह्यूमन स्पेसीज इज रेजिस्टेंट टू प्लांट पैथोजन। हम अगर कहते हैं कि वी हैव द इम्यून सिस्टम विच डजेंट अलो द फॉरेन सब्सटेंस टू एंटर द बॉडी, देन हाउ? हम तो रोज़ लाइक प्लांट सेल्स को खाते हैं, हम रोज़ प्लांट्स खाते हैं। सो हाउ आवर बॉडी डजेंट जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट? क्यों? हमें लाइक समटाइम्स एलर्जिक रिएक्शन आर सीन बट नॉट ऑलवेज। हम रोज़ खाते हैं, हमें कुछ रोज़ स्पेसिफिकली कुछ लाइक उसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, नॉट कि उसको थ्रो आउट करती है। सो वाई दिस पर्टिकुलर थिंग हैपन, द mechanism इज़ नॉट नोन स्टिल। द सेकेंड वन इज़ द रेशियल इम्यूनिटी। लाइक पर्टिकुलर प्लेस के लोग हैं, वो पर्टिकुलर जो है बैक्टीरिया या फिर पर्टिकुलर डिसीज़ को जो है जल्दी जो है ससेप्टेबल है। मतलब अगर वो डिसीज़ का आउटकम आया तो उनको जल्दी वो लोग बीमार पड़ेंगे। लाइक 1 या 2 लोग नहीं तो एक कम्युनिटी, एंटायर कम्युनिटी। सो इट इज़ कॉल्ड एज रेशियल इम्यूनिटी। रेस माने एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। देन थर्ड वन इज़ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के बेसिस पे अगर एग्जांपल दूँ तो लाइक हर किसी की इम्यूनिटी डिफरेंट है। किसी को जल्दी बीमार पड़ने का जो है वो हैबिट रहता है, मतलब सम पीपल लाइक फॉल इल एवरी नेक्स्ट डे, और किसी किसी को कुछ भी करो कुछ नहीं होता है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज इंडिविजुअल इम्यूनिटी। सो नाउ अगर आपको क्वेश्चन आए इनेट इम्यूनिटी पे कुछ लिखो, तो आपको बेसिकली 5 जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट आप जस्ट एनलिस्ट भी करें ना तब भी बहुत है। सो इनमें फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल एंड केमिकल बैरियर।
सो यहाँ पे मैंने आपको बताया आवर स्किन इज़ अ बैरियर, आवर म्यूकस मेम्ब्रेन इज़ बैरियर, आवर हेयर इज़ बैरियर, एंड इफ़ वी गो इन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, सो हमारे स्टमक में जो है वो गैस्ट्रिक जूस रहता है, HCl वी नो. So in the stomach it is present gastric juice, even the pepsinase enzyme is present, और इवन हमारे गट में जो है नेचुरल माइक्रोफ्लोरा रहता है, जो अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंटर करे तो ये नेचुरल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं हमारे गट फ्लोरा यानी कि हमारे स्टमक में, सो दिस हेल्प्स टू एलिमिनेट दैट पैथोजन. इवन द पेप्सिनेज एंजाइम, इवन द आइज़ में जो टीयर रहते हैं उसमें एक एंजाइम रहती है, लाइजोजाइम्स बोलते हैं उसको, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ अ बैरियर. सो देन दिस फैगोसाइटोटिक सेल्स, then neutrophils, macrophages, dendritic cells, natural killer cells, these are also आपको ये डिटेल में अभी नहीं बताऊँगी, बस उनका फंक्शन बताती हूँ. सो दिस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी. सो द फैगोसाइटोटिक सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल्स जो है वो पर्टिकुलरली जो है वो वायरस के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे. माइक्रोफाजेस जो है वो डायरेक्टली बैक्टीरिया या फिर फॉरेन सेल्स को जो है वो इनगल्फ करेंगे. डेंड्राइटिक सेल्स माने वो जो पर्टिकुलरली जो है वो लाइक ट्यूमर्स वगैरह होते हैं ना, उसको किल करने में हेल्प करेंगे. देन द नेचुरल किलर सेल्स, वो भी जो है पर्टिकुलरली जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या फिर वो भी जो है एंटी ट्यूमरिक सेल होते, आई एम सॉरी, डेंड्राइटिक सेल जो होते हैं वो पर्टिकुलरली सिग्नलिंग सेल्स होते, दे आर नॉट द ट्यूमर किलिंग सेल्स. दिस नेचुरल किलर सेल्स आर ट्यूमर किलिंग सेल्स. देन ब्लड में कोई प्रोटीन्स रहते हैं लाइक कोएगुलेशन प्रोसेस, वी आर वेरी मच अवेयर. लाइक कहीं भी चोट लग जाती है तो जल्दी से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है. दैट्स वाई द ब्लड प्रोटीन्स, they are responsible for that purpose. We will study in our later chapters. Then including the members of complement system and other mediators of the inflammation. यहाँ पे जो है चोट लगे तो इन्फ्लामेशन तो हो ही जाता है, या फिर इवन वैक्सीनेशन ली होगी बचपन में, देन फीवर आ जाता है वैक्सीनेशन लेने के बाद, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ द इन्फ्लामेशन. हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करके जो है वो बैक्टीरिया या फिर वो फॉरेन सब्सटेंस को किल करने की ट्राई करती है. Then the cytokines that regulate and coordinate many activities of the cell of innate immunity. Cytokines are the types of proteins, वो सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ से वहाँ सिग्नल लाइक एंटीजन आया है बॉडी में तो ये साइटोकाइंस जो है वो मैक्रोफाजेस या फिर न्यूट्रोफिल्स उनको सिग्नल देंगे सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर पाथवेज. फैगोसाइटोसिस या फिर कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है वो एक्टिवेट कर देंगे. सो दिस इज़ हाउ दिस इनेट इम्यूनिटी परफॉर्म्स. ये जो है 5 आप इनलिस्ट कर लो, फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स है या फिर जो सेल्स रहते हैं नेचुरल किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाजेस, इवन ब्लड प्रोटीन, साइटोकाइंस, सब. इवन एक एग्जांपल और है इसके अलावा कि हमारे जो बॉडी पे नेचुरल माइक्रोफ्लोरा रहता है ना, वो भी हमें हेल्प करता है टू डिफेंड आवर सेल्फ अगेंस्ट द पैथोजन. सो ये सब जो है वो एनलिस्ट आप कर सकते हैं इन द इनेट इम्यूनिटी. देन वी विल सी द एक्वायर्ड एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी. जब उसका नाम ही एक्वायर्ड है मतलब वो कुछ एक्सटर्नली एक्टिवेट लाइक वो जो है वो पहले नेचुरल नहीं प्रेजेंट रहता, बॉडी जो है उसको एक्वायर करती है या तो उसको अडाप्ट करती है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी. सो क्या रहता है बॉडी में, जब कोई एंटीजन कोई या फिर फॉरेन सब्सटेंस इफ इट ट्राइज टू इन्वेड, देन उसके अगेंस्ट जो है वो जो सेल में लाइक फॉर एग्जांपल टी सेल रहते हैं, बी सेल रहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे. वो जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे उसके अगेंस्ट, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट. एंड वो जो एंटीबॉडीज़ है वो जो एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस हुई है वो अभी अपना काम कर देगी, वो उसको एंटीजन को किल कर देगी एंड उसकी जो है मेमोरी सेल्स बनाएगी टी सेल्स एंड वो स्टोर करके रखेंगे. सो जब नेक्स्ट टाइम अगर फिर से वो हमारे लाइक बॉडी को वो डिसीज़ एनकाउंटर हो तो हमें वो डिसीज़ फिर से ना हो. लाइक स्मॉल पॉक्स का आपने सुना होगा कि एक बार हो गया इन्फेक्शन तो वो दोबारा नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स बना के रखती है. सो दिस इज़ व्हाट एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़.
So here the specific component, it is a specific component because 3 बैक्टीरिया अगर इनकाउंटर हो तो उन तीनों के अगेंस्ट सेपरेट सेपरेट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम एक्वायर्ड इम्यूनिटी करेगा. So now it occurs after the exposure to the agent will mediate by the antibodies as well as the T lymphocyte. Now T lymphocyte जो है उनके दो टाइप से, T helper cells and T cytotoxic cell. T helper cell जनरली जो है मेमोरी सेल्स बनाएंगे, वो स्टोर करके रखेंगे बॉडी में. एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आर देयर विच विल एक्चुअली अटैक, जो है वो अटैक करेंगे, उसको लाइसिस करेंगे उस एंटीजन का. एंड दिस इज़ हाउ दे विल प्रोटेक्ट आवर बॉडी. एंड ऑल्सो दे हैव दैट एबिलिटी, दिस टी सेल, उनके पास एबिलिटी कि वो, जैसे हमने इनेट में भी कहा कि वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में जो है डिस्टिंग्विश कर पाता है. देन वी हैव this antigen is recognized by the cell of the acquired immune system and specific response is generated. And then after that it will like first exposure हुआ तो सपोज एक दिन लगा उसको रिस्पॉन्स जनरेट करने में, बट नेक्स्ट टाइम अगर वही बैक्टीरिया फिर से एंट्री करेगा सो ये रिस्पॉन्स इमीडिएटली आएगा. वाई? बिकॉज उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो चुकी है ऑलरेडी और उसकी मेमोरी भी अपने बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड है. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. और जितनी ज़्यादा बार वो बैक्टीरिया अटैक करेगा बॉडी पे उतनी ज़्यादा हमारी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट स्ट्रांग होगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा. सो दिस इज़ हाउ द एडेप्टिव और द एक्वायर्ड इम्यूनिटी वर्क्स. सो अगर आपको कुछ समझ ना आए इसमें तो आप बेसिक कुछ कैरेक्टर्स याद रखो. लाइक इट इज़ हैविंग द एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, यानी कि स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स इट विल जनरेट. दैट इज़ फॉर वन एंटीजन वन इम्यून रिस्पॉन्स. इट इज़ नॉट रिपीटेड ऑन दी सेकंड एंटीजन, सेकंड के लिए दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स. देन डाइवर्सिटी, कितने भी एंटीजन आए उनके अगेंस्ट उनके पास बहुत ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंगली वो एंटीबॉडी जनरेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो अटैक करेंगे. ये नहीं कि एक ही एंटीजन आया तो उसके लिए जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया वही सारे लोगों के लिए करेगा. नो, इट हैज़ द डाइवर्सिटी कि वो सेपरेट एंटीजन के लिए सेपरेट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर मेमोरी. Immunogenic memory, yes, right. So it has the capability to store the immunogenic memory. कुछ मेमोरी सेल्स बना के रखेगा. सपोज उसने कुछ एंटीबॉडीज़ बना ली कुछ एंटीजन के अगेंस्ट, तो वो वही मेमोरी सेल स्टोर करके रखेगा. सो अगर नेक्स्ट टाइम वो अटैक हुआ भी तो अपने पास तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ है, तो वो एकदम फास्ट, पहले से भी ज़्यादा फास्ट वी कैन से, इट विल अटैक दैट एंटीजन एंड इट विल बी किल्ड. सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो दोनों इम्यूनिटी में आता है. दैट कि हमारे सेल्स को सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन की ट्रेनिंग दी जाती है. उनको पता रहता कि कौन सी बॉडी की सेल्स है और कौन से फॉरेन सेल्स है. सो दिस इज़ हाउ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी वर्क्स. सो हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर अडाप्टिव इम्यूनिटी है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज़ एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड वन इज़ पैसिव इम्यूनिटी. सो इन द केस ऑफ द एक्टिव इम्यूनिटी, उसका नाम ही एक्टिव है, मतलब वो हर वक्त एक्टिव रहती, मतलब जैसे ही एक्सपोजर हुआ इट विल जनरेट इम्यूनिटी. फर्स्ट टाइम में ऑब्वियसली एंटीबॉडी जनरेट करने में वगैरह टाइम लगेगा उसको, बट हियर इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग. मतलब व्हेन द एनकाउंटर हैपन्स इट विल जनरेट एंटीबॉडी, then it will also generate along with the antibodies memory antibodies will generate, memory T cells will generate, जो अगेन अगर नेक्स्ट एनकाउंटर हुआ तो झट से वो न्यू एंटीबॉडीज़ बना सकते. सो इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. देन फर्दर वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है. वो कैसे एक्ट करता है, इट इज़ अकॉर्डिंगली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड दी पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी. अब नेचुरल एक्वायर इम्यूनिटी का नाम ही नेचुरल है, मतलब अगर हमें कभी कोई डिसीज़ हुआ, सपोज स्मॉल पॉक्स हुआ, देन फर्स्ट टाइम में इट विल टेक टाइम टू जनरेट सम काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. बट अगर वो वही बैक्टीरिया वही पैथोजन अगर नेक्स्ट टाइम हमें इन्फेक्ट करने की कोशिश करे या इन्फेक्ट करे, so it will have, our body will have some memory cells in it. That is why they will generate the antibodies and that's why the infection will not like cause that much of effect. जितना हमको फर्स्ट टाइम उसने इफेक्ट किया था उतना वो सेकंड टाइम इफेक्ट नहीं कर पाएगा.
सो दिस इज़ हाउ द नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी वर्क्स. यहाँ पे स्मॉल पॉक्स का एग्जाम्पल दिया गया है. सो नाउ द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, इसका नाम ही आर्टिफिशियल है, मतलब वो कहीं से लाइक एक्सटर्नली कुछ उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं कि इम्यूनिटी हम एक्सटर्नली लेते हैं. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट डेवलप्स आफ्टर वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन वी नो वेरी वेल. एक्सटर्नली हमको जो है वो पैथोजन फ्री, पैथोजेनिसिटी फ्री पैथोजन, मतलब उसकी पैथोजेनिसिटी एबिलिटी रिमूव करके जो पैथोजन है उसका डोसेज हम देते हैं. दैट इज़ वाई एंटीबॉडी डेवलप होती है, वो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट होती है. दैट इज़ वाई सेकंड टाइम जब एनकाउंटर हो तो फिर से हमारी बॉडी उससे इन्फेक्ट नहीं, फिर से क्या पहले ही बार में वो बॉडी इन्फेक्ट नहीं कर पाती. सो दिस इज़ हाउ द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी वर्क्स. देन वी हैव द पैसिव इम्यूनिटी. उसका नाम ही पैसिव है, मतलब वो कुछ किसी और से लाइक जो इम्यून पर्सन है वो जो है किसी और को वो इम्यूनिटी दे रहा है. नाउ इट इज़ पैसिव इम्यूनिटी. सो द इम्यूनिटी विच इज़ ट्रांसफर्ड विच इज़ टेकन बाय द taken by transferring of serum or lymphocyte from specificity immunized individual, then this type of immunity is called as passive immunity. कोई इम्यूनाइज पर्सन है, मतलब अगर सपोज कोई एक इंसान है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पा रहा एंड द सेकंड इंडिविजुअल इज़ देयर जो इम्यून रिस्पॉन्स अच्छे से जनरेट कर रहा है, उसके बॉडी वो इन्फेक्ट हुआ है कभी उस डिसीज़ से, उसके बॉडी में जो मतलब रिसेंटली डिसीज़ से इन्फेक्ट हुआ है, उसके बॉडी में है वो एंटीबॉडीज़, तो हम वो एंटीबॉडीज़ वो लिम्फोसाइट या फिर वो सीरम लेंगे उस हेल्दी इंडिविजुअल से या फिर क्योर्ड इंडिविजुअल से, एंड देन वी विल इनकॉर्पोरेट इट इनटू द वन हु इज़ लैकिंग दैट इम्यूनिटी, या फिर वो जो है वो डिसीज़ सफ़र कर रहा है, मतलब उसको डिसीज़ हुआ है. So after that transfer, that individual who is suffering from disease, it will also generate, it will have that immunity in it and it will help that individual to fight against the disease. Then it is also like passive immunity भी दो टाइप्स में divided है, natural and artificial. So here in the natural passive immunity, like हमारे naturally मदर से फिटस तक इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है. हमने कहा कि इनेट इम्यूनिटी है इन लाइक हमारे अंदर नेचुरली है, तो वो कहाँ से आती है, मदर टू फिटस. तो आईजीजी नाम के जो एंटीबॉडीज़ है वो जो है मदर से फिटस तक ट्रांसफ़र होते हैं. दैट इज़ वाई वी हैव द लाइक इम्यूनिटी फ्रॉम आवर बर्थ इटसेल्फ. लाइक हम इतने छोटे रहते हैं एंड देन हाउ आवर बॉडी विल फाइट अगेंस्ट द डिसीज़, हाउ विल इट फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया. सो हमारे मदर में जो आईजीजी एंटीबॉडीज़ रहते हैं, इट विल बी ट्रांसफर टू अस to the infant, and that's why it is protected. And even it is the IgA named antibodies or immunoglobulins are also transferred here. So and it protects the fetus up to 6-month old age. So you can imagine how much powerful these antibodies are and how how efficiently our immune system works. So then we have the artificial passive immunity. Now it is induced by the individual by the administration of performed antibodies, generally in the form of anti-serum raised against an infecting agent. सो कभी कभी लैब में जो है वो सीरम का यूज़ करके एंटीबॉडी जनरेट की जाती है या फिर एंटी सीरम जनरेट किया जाता है. दैट इज़ व्हाट वी यूज़ हियर विच इज़ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. हमने बताया कि एक आर्टिफिशियल जो यहाँ पे हमने बताया नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में दैट कि नेचुरली मदर से ट्रांसफ़र होता है, बट यहाँ पे अगर हम लैब में या फिर किसी और से ले एंड देन वी ट्रांसफ़र इट टू दी लाइक द वन हु इज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन. सो उसमें अगर भी एंटीबॉडी जो हेल्दी इंडिविजुअल में डेवलप हुई है वो अगर हम नॉन हेल्दी इंडिविजुअल में डाल दें, then it is called as the artificial passive immunity. So here immediate availability of the large number of antibodies is a major advantage of passive immunity. अगर हम यहाँ पे बात करें एक्टिव पैसिव नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में, यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा मदर की यहाँ फिटस में आने के लिए, बट यहाँ पे इन द एक्टिव आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी यहाँ पे लार्जर अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ एट ए टाइम हमारे बॉडी को मिलता है. सो दैट इज़ वाई कि लार्जर इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो वहीं पे जनरेट होता है.
ये नहीं कि उसको टाइम लगेगा कि हेल्पर सेल्स को जनरेट हेल्पर सेल को बोले कि वो मेमोरी सेल से एंटीबॉडीज़ बनाए एंड देन अटैक करे। नो, हम उसको एक्सटर्नली एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं, दैट इज़ वाई उसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जल्दी जनरेट होगा। So now we have seen the innate immunity and the acquired immunity। यहाँ पे एक चार्ट है जहाँ पे आप अगर ये चार्ट लिख के ले तो आपको बेसिक समझ आएगा कि एक्चुअल में हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्वायर्ड एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। एंड आई गेस डिस्टिंग्विश करने से या फिर डिफ्रेंशिएट करने से हमको ज़्यादा याद रहता है। सो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। सो डेफिनेशन इज़ दैट हियर innate immunity, innate is inborn immunity which is not specific, which is present by birth, and in the acquired immunity it is specific immunity, it will be generated according to the antigen encounter। यहाँ पे एंटीजन होने के एनकाउंटर के पहले ही हमारे पास इम्यूनिटी रहती, बट यहाँ पे एंटीजन एनकाउंटर के बाद इम्यूनिटी जनरेट होती है। देन टाइम टेकन टू डेवलप इज़ आवर्स। एज आई टोल्ड, स्किन पे इनकाउंटर हुआ वहीं पे जो है बैक्टीरिया इनकाउंटर हुआ वहीं पे वो किल हो जाएगा। बट हियर इन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी वी विल रिक्वायर सम टाइम कि वो अब यहाँ पे फिजिकल बैरियर से वो होके अंदर गया है, मतलब उसको टाइम लगेगा इनकाउंटर होने में, तो हमारे सेल्स को एक्टिवेट होने में, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट करने में टाइम लगेगा। सो दैट इज़ वाई इट विल रिक्वायर डेज। बट इफ सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए, सेकंड टाइम वो थोड़े जल्दी जो है एंटीबॉडी जनरेट करेगा। देन वी हैव द यूज अगेंस्ट। सो नाउ पर्टिकुलरली हमारी स्किन जो है हमको माइक्रोब से प्रोटेक्ट करती है, वाइल जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हमें नॉट ओनली माइक्रोब्स, इवन डस्ट पार्टिकल्स, इवन ट्यूमर सेल्स, इन सब से हमें प्रोटेक्ट करती है। देन वी हैव मेमोरी। एज वी नो इनेट इम्यूनिटी में मेमोरी नहीं होती, वो जो है जैसे इनकाउंटर होगा वैसे वैसे वो अटैक करेगा। यहाँ पे एक्वायर्ड में वी स्टोर द मेमोरी सेल्स so that second time if attack happens then our body has already have the memory cells, that is why it will generate the antibodies and it will help us to fight the disease। then we have the components। now which components are involved, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था। in the innate immunity we have skin, we have the mucus, we have some enzymes, gastric juices, as well as natural killer cell, macrophages, cytokines, these are all proteins, blood proteins, these are all involved in the innate immunity। while in the acquired immunity we only have antibodies, वहाँ पे किसी और चीज़ का रोल नहीं है। lymphocytes एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, वही हमारे एंटीजन, वही जो है एंटीजन को किल करेगी। then cells involved here are phagocytes, natural killer cell, but here only lymphocytes are involved। so this is the chart you need to remember। आप इससे बहुत कुछ लिख सकते हो। so overall we have seen what is immunity, how it is classified, then what are its subtypes। ये सब important है and I hope you have understand my lecture। if not please if you have any queries please note it down in the comment section। and in the next lecture we will see the how the primary defense organs, then the secondary defense, how our body carries out this kind of defenses, or how the lymphatic system works in the body to prevent against some antigen or some external agents। we are going to learn it all in the next lecture। thank you।